Hello, all the students. A very good morning to all. So, in today's lecture, we are going to acknowledge ourselves with respect to the poetry science. And this PDF was being shared by Dr. Parvinder, and I have gone through this, and I found that this is one of the best and concise note with respect to poetry science. If so, for the preparation of exam, very essential and important points are being shared in this PDF. So we will go through this to just boost up our memory and to acknowledge and update our knowledge, right? So, okay, so first is the parts of oviduct and their contribution. एग्ज़ाम्स में जो है इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसीलिए हम इसको जो है रिवाइज करेंगे ताकि हम अपनी मेमोरी को कॉन्क्रीट कर सकें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ oviduct के we are having 5 parts, right? So the first is the infundibulum, then it is magnum, okay, then isthmus, then uterus, then it is the vagina. Okay, so oviduct is divided into 5 parts and काफ़ी दफ़ा जो है लेंथ पूछा जाता है, राइट। सो लेंथ नहीं, आपसे ये पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज और द shortest part of the oviduct is. Okay, so whenever a question arises like the name the longest part of the oviduct, then it is magnum, which is around 38 centimeter, right? So you just have to know that the longest part of the oviduct is magnum, and if the question asked is like name the smallest part of the oviduct, then you should know that it is the vagina, which is around 5 centimeter, right? They won't ask you about the dimension of how much length it is, but they will definitely ask you about the longest part and the shortest part, and most of the time the magnum is being asked, right? So if we see for infundibulum, isthmus and uterus, it's of the around it's these three are of the same length, right? So time taken by egg in each part, जब egg का formation हो रहा होता है तो ओविडक्ट के कौन से पार्ट में कितने टाइम के लिए जो है एग रहती है, इसके ऊपर भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। सो इनफंडिबुलम में एग रिमेन्स फॉर 15 मिनट। सो इनफंडिबुलम इज़ द फर्स्ट पार्ट। इसमें जो है इट इज़ ऑफ अ फनल शेप और इसमें फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस फिम्ब्रिया विच इज़ नॉन एज द फिम्ब्रिया, दिस फिम्ब्रिया का फंक्शन क्या होता है कि जब ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवा रिलीज हो रहा है तो इस ओवा को जो है कैच करें एंड सो दैट दिस एग जो है इट कम्स इन द ओविडक्ट एंड ओविडक्ट में it will pass from one part, that is infundibulum, to the other part, that is magnum, right? So infundibulum में egg stays for 15 minutes. Okay, 15 minutes के लिए सबसे कम ड्यूरेशन के लिए egg जो है infundibulum में stay करती है. Then the duration of egg in the magnum is 3 hours. Okay, the duration in the magnum is 3 hours and that in the isthmus is around 1 hour 15 minutes. ठीक है, around 70 minutes के लिए जो है it remains in the isthmus. And uterus में the egg remains for the longest period. Okay, it remains for the longest duration, that is around 21 hours. काफ़ी बार अलग अलग बुक के रेफरेंस में इन टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, जैसे किसी किसी में जो है मोर देन 21 आवर्स भी लिखा रहता है, ठीक है। तो जस्ट सी की ऑप्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर देंगे, ठीक है। बट इनफंडिबुलम में आपको 15 मिनट्स ही मिलेंगे, मैग्नम में 3 आवर्स। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि इसमें 1 आवर 15 मिनट्स हैं। समटाइम्स जो है 70 से 80 मिनट्स के बीच आपको कहीं मिल जाएंगे किसी बुक्स में। यूट्रस में 21 से 24 आवर्स तक कहीं मिल जाते हैं, बट यू जस्ट स्टिक टू द स्टैंडर्ड, दैट इज़ 21 आवर, राइट। देन कंट्रीब्यूशन, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है। सो द फर्स्ट पार्ट इनफंडिबुलम का कंट्रीब्यूशन क्या है, there is its function is to collect the yolk, to collect the ovum from ovary, right? So the next part, that is the magnum, it adds albumin, the egg white part, to the
yolk, right? Then the third part, that is the isthmus, it secretes the shell membrane, right? Shell membrane. Then it is uterus. uterus का function क्या है? एक तो ये shell जो है secrete करती है, यानी कि it is adding the shell part to the egg. Then also the shell pigment, ठीक है जी, शेल पिगमेंट, एग का कलर वाइट होगा, ब्राउन होगा, राइट? दिस इज सिक्रीटेड बाय द यूट्रस. इसीलिए जो है यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज द शेल ग्लैंड. ओके, रिमेंबर दिस, यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज द शेल ग्लैंड बिकॉज इट इज एडिंग द शेल पार्ट टू द एग, right? And also the cuticle is also added in the uterus part, right? And then vagina का function क्या है? ये egg को hold करके रखती है जब तक oviposition ना हो जाए. Till the egg is laid down, it is being held in the vagina part of the oviduct. Clear? ठीक है जी. Next आपसे मैंने काफ़ी बार आपको पूछा है व्हाट इज ओविपोजिशन, राइट? ओविपोजिशन इज एक्ट और प्रोसेस ऑफ एग लेइंग इन बर्ड्स. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें लेड डाउन होता है एग का, द एक्सपल्शन ऑफ एग फ्रॉम द ओविडक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दिस इज नोन एज ओविपोजिशन. ओके, टोटल टाइम कितना लगता है ओविपोजिशन में? 24 से 26 आवर्स लग जाएंगे. ठीक है जी. हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इज आर्जिनिन, okay, vasotocin, arginine vasotocin, abbreviated as AVT. Okay, and this hormone is released from the posterior pituitary gland, right? Next, incubation period. Now incubation period is time period from oviposition to the hatching of an egg, right? So what is the incubation period? incubation period जब जो है एग का लेड डाउन हुआ से लेकर उसमें से जब एग हैच होके उसमें से जो है एग की हैचिंग हो जाएगी, तो ये जो टाइम पीरियड है, दिस इज द हैचिंग होके उसमें से जो है चिक्स विल कम आउट, दिस इज द इंक्यूबेशन पीरियड. और इंक्यूबेशन पीरियड पोल्ट्री के अलग अलग जो ब्रीड हैं उसमें इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होंगे. लाइक इन केस ऑफ चिकन द इंक्यूबेशन पीरियड इज 21 days, यानी कि जब ओविपोजिशन हुआ, एग का लेट डाउन हुआ से लेके वो ड्यूरेशन जब चिक्स जो है एग में से रिलीज होंगे, सो दिस टाइम ड्यूरेशन इज 21 days. इन केस ऑफ डक इट इज हाउ मच? इन केस ऑफ डक इट इज अराउंड 28 days, right? So also I think in case of turkey it is also 28 days. and in case of quail के केस में ये दिन कम होते हैं. आई थिंक इट इज़ अराउंड 14 to 16 days, राइट? सो हर जो बर्ड के डिफरेंट बर्ड के स्पीसीज़ हैं उनमें ये जो इंक्यूबेशन पीरियड का टाइम है ये अकॉर्डिंग टू बर्ड के स्पीसीज़ ये अलग अलग होंगे. ठीक है जी. सो ओके जी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, आपसे अगर पूछा जाए कि ऑन एन एवरेज जो चिकन एग है इसका एक स्टैंडर्ड साइज कितना होना चाहिए, देन इट इज़ 58 ग्राम. 58 ग्राम इज़ द स्टैंडर्ड साइज. ओके, सो द एग कंटेन्स मेजर पोर्शन ऑफ एग में वाटर प्रेजेंट होता है. 74% इज वाटर एंड द रेस्ट 26% इज द ड्राई मैटर. एंड ड्राई मैटर कंटेन्स दी, ओके, ड्राई मैटर में आपके एल्बुमिन वाला पार्ट आ जाएगा. That is the protein part, which is around 13%, right? So 13% protein, 11% fat, 1% carbohydrate, and 1% is the ash, that is the mineral part, right? So if we talk about the whole egg of chicken, अगर हम चिकन एग की बात करें, ठीक है, तो चिकन एग में जो है शेल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 11%. ठीक है, तो जो चिकन एग है उसका 11% इज मेड अप ऑफ द शेल, 58% इज मेड अप ऑफ द एल्बुमिन एंड 31% इज मेड अप ऑफ द यॉक. टोटल हो गए 100, राइट? सो एग शेल कंसिस्ट ऑफ 96% इनऑर्गेनिक एग